it's time to move on to gold. There are a lot of current developments that has happened in the gold industry. It can be in the form of challenges as well as issues as well as positive changes also. Gold industry has been going through a lot of changes since few years. Every now and then we are facing challenges due to new developments like the HUID, hallmarking customs, GST, etc. Few of the latest developments include the Indo-UAE Treaty, GMS, and launch of India International Bullion Exchange, that's IIBX. Will these developments be helpful for all? Will these developments help us in doing business smoothly? How can we overcome these issues collectively and where the market is heading in future? To discuss all these and more, we have the National Secretary of India Bullion and Jewelers Association from Mumbai. He is a qualified chartered accountant from 1988 batch. He has been appointed as the National Secretary of 101-year-old association, India Bullion and Jewelers Association, since 2012. He was pioneer in converting Old Bombay Bullion Association, that is BBA, to India Bullion and Jewelers Association. He has in-depth knowledge of gold ecosystem and has delivered more than 500 lectures on gold policy, GST, hallmarking, bullion exchanges, etc. He is one of the key person for giving data and idea about gold monetization scheme and sovereign gold bond. He is on the product advisory committee of MCX, NSE and BSE. He represents government on behalf of IBJA for all national issues related to gold. He was a key person to get IBJA gold benchmark rates approved with RBI and Ministry of Finance. Currently, no bank can lend money against gold jewelry except on IBJA rates as per various notification of RBI. Further, as Government of India Gazette notification of Ministry of Finance, sovereign gold bond can be issued and redeemed at IBJA rates. He regularly features on various media channels to give his candid views on gold. His quotes and write-ups in print media are most awaited in jewelry industry. He is said to be the master in interpretation of law related to the gold industry. He is also on the steering committee of World Gold Council for setting up bullion exchange and bullion bank. IBJA has set up its offices in 31 states under his able leadership. He is considered to be the expert in forecasting gold spot market. He is part of gold standards set up by the different exchanges. He is a key person in implementing OECD guidelines for gold industry. He regularly features in media and press for his views on gold market. And without much delay, let me call upon Mr. Surendra Mehta on the stage. Thank you for such a warm introduction. Never expected this and काफ़ी लंबा हो गया. I am sorry for this. आप लोग हिंदी में सुनना चाहेंगे, इंग्लिश में सुनना चाहेंगे? मिक्स ऑफ बोथ. नहीं, जो कन्वीनियंट हो, जैसे भी. तो शुरू करते हैं. मेरे ख्याल से ऑलरेडी मेरे पास समय बहुत कम है. शायद मैं आपसे 20-25 मिनट मैक्सिमम बात कर पाऊँगा बिकॉज आई हैव अदर मीटिंग लाइंड अप. तो हम क्वेश्चन आंसर ही करें. इससे अच्छा कि मैं कुछ बोलूँ, उससे अच्छा आप क्वेश्चन ही पूछें, वो ज़्यादा बेटर होगा अगर आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन हो. IIBX के बारे में इंट्रोडक्शन चाहिए आपको. देखिए, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX का फुल फॉर्म है. अभी तक आप जो गोल्ड खरीदते हैं, यू हैव बीन ऑलवेज बाइंग गोल्ड फ्रॉम द बैंक. या तो आप बैंक से गोल्ड खरीदते हैं या किसी बुलियन डीलर से गोल्ड खरीदते हैं. लेकिन अब सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि there is a mechanism wherein you can buy gold from the exchange itself, through the exchange. Exchange is always a platform. So that is called India International Bullion Exchange. Now who can buy gold from this exchange? कौन इस exchange से gold buy कर सकता है? उसकी definition दी हुई है. यदि कोई भी ज्वेलर या बुलियन डीलर, गोल्ड ज्वेलर या बुलियन डीलर जिसका नेटवर्थ लास्ट ईयर में 25 करोड़ से ऊपर है, लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट में उसकी नेटवर्थ 25 करोड़ से ज़्यादा है, मीन्स हिज नेटवर्थ शुड एक्सीड 25 करोड़ इन द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट. सेकेंडली,
he should have 90% business either from gold bullion or gold jewelry in the last 3 years. So आपका लास्ट 3 साल का जो बिजनेस है वो बुलियन या ज्वेलरी के रिलेटेड होना चाहिए. ज्वेलरी में ओनली गोल्ड ज्वेलरी, नॉट अ डायमंड ज्वेलरी. तो आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आप इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में आप रजिस्टर हो सकते हैं. और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जीएसटी के सारे रिटर्न अप टू डेट फिलअप किए हुए होने चाहिए. तो जीएसटी के रिटर्न तो नॉर्मली फिलअप होते ही हैं. सो अगर आप इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इफ़ यू सेटिस्फाई ऑल दिस 3 कंडीशंस, you are eligible to become eligible to trade on the India International Bullion Exchange. So you are officially called a qualified jeweler. एक बार आप qualified jeweler हो गए तो आप डायरेक्टली जैसे आप शेयर खरीदते हैं वैसे आप सीधा सीधा सोना खरीद सकते हैं. भारत में इतने सालों से सोने का व्यापार होता है. ये व्यवस्था 29 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ओपनिंग करके देश को समर्पित की है. और इसमें बहुत सारी एजेंसियों ने काम किया, जिसमें IBJ एक एजेंसी थी, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल था और बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन थे. अब कैसे आप सोना बाय करेंगे? आपको 3 तरीका है. अगर आप क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं तो आपके पास 3 मैकेनिज्म हैं सोना बाय करने के. आप ट्रेडिंग मेंबर बन सकते हैं, आप लिमिटेड पर्पस ट्रेडिंग मेंबर बन सकते हैं, या आप क्लियरिंग मेंबर बन सकते हैं. यदि आप ट्रेडिंग मेंबर बनना चाहते हैं तो ट्रेडिंग मेंबर क्या होता है वो समझ लीजिए. जैसे आप इक्विटी मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो आप शेयर किससे खरीदते हैं? मोतीलाल ओसवाल से खरीदते हैं, आनंद राठी सिक्योरिटी से खरीदते हैं, उनके जरिए, उनके जो ब्रोकर होते हैं, या निर्मल बंग के जरिए खरीद सकते हैं. वैसे ही आप सोना ट्रेडिंग मेंबर में ट्रेडिंग मेंबर के जरिए खरीद सकते हैं. ट्रेडिंग मेंबर्स बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, जिसमें आनंद राठी है, मोतीलाल ओसवाल है, बहुत सारी दूसरी कंपनियां है, ICICI बैंक है. आप उनके पास जाइए, अपने आप को एज अ ट्रेडिंग मेंबर रजिस्टर कर लीजिए और आप डायरेक्टली सोना इंपोर्ट कर सकते हैं. बेसिकली आपको सोना इंपोर्ट करने की सरकार परमिशन देती है. जब आप शेयर खरीदते हैं तो व्हाट हैपेंस, आपको शेयर मिलता है. आपको समझो रिलायंस के शेयर खरीदने हैं तो आप आपके ब्रोकर के पास गए, आपने कहा कि भाई मुझे 3,000 रुपये में रिलायंस का शेयर मिलता है तो मुझे आप खरीद के दे दो. यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है. यहाँ पे आपको कहना है कि भाई मुझे, यहाँ पे जो पूरा ट्रेड होगा वो पूरा ट्रेड डॉलर टर्मिनोलॉजी में होता है, क्योंकि ये जो पूरा एक्सचेंज है वो गिफ्ट सिटी में सेटअप किया होता है. गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी एक फॉरेन एंटिटी, फॉरेन डेस्टिनेशन इंडिया के अंदर ही बनाया गया. मतलब आप जब गिफ्ट सिटी के अंदर होते हैं तो आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर है. अपने आप को आप ऐसा समझिए कि यू आर इन दी सम फॉरेन कंट्री. वहाँ पे ये एक्सचेंज एस्टेब्लिश हुआ है. तो अभी जैसे $1665 गोल्ड का भाव चल रहा है, तो आप उस एक्सचेंज पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे कोई बेचने वाला $1665 में गोल्ड बेच रहा है, कोई मांगने वाला उसको $1664 में मांग रहा है. तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं. कैसे खरीद सकते हैं? बाय आइदर बिकमिंग अ ट्रेडिंग मेंबर और लिमिटेड पर्पस ट्रेडिंग मेंबर और अ क्लियरिंग मेंबर. ट्रेडिंग मेंबर में आप, जैसे मैंने बताया, आनंद राठी है ट्रेडिंग मेंबर, मोतीलाल ओसवाल है ट्रेडिंग मेंबर, ICICI ट्रेडिंग मेंबर है. अब आप ट्रेडिंग मेंबर के जरिए जब जाएंगे तो आपको ब्रोकरेज लगेगा. ब्रोकरेज कितना लगेगा? $2.5 के आसपास आपको ब्रोकरेज लगेगा. मतलब $2.5 मतलब लगभग आपको $200 ब्रोकरेज लगेगा. और आपको $2.5 के आसपास उतना ही डॉलर आपको क्लियरिंग चार्जेस देने पड़ेंगे. तो आपको $5 एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी. मतलब आपको 1 किलो सोने पे $400 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. एक्सचेंज में 995 kg का 1 kg का बार आप खरीद सकते हैं डायरेक्ट, या 999 के 100 ग्राम्स के पीसेस आप खरीद सकते हैं. 995 का 1 kg और 999 का 100 ग्राम्स आप खरीद सकते हैं. आपको एक्सचेंज के टर्मिनल पे आपका ब्रोकर बताएगा कि ये प्राइस में दिख रहा है. वो आप चाहिए तो आप उस टर्मिनल को भी आपका ब्रोकर आपको बता सकता है कि ये भाव में ट्रेड हो रहा है. लेकिन यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो आपका ब्रोकर आपको शाम को पेमेंट मांगता है आपसे कि भाई आपने सुबह शेयर खरीदे तो आपको शाम को पेमेंट करना है. लेकिन यहाँ पे आपको एडवांस में पेमेंट करना है. आप पेमेंट बाद में नहीं कर सकते. आपको कितना एडवांस में पेमेंट करना है? मान लीजिए 1 किलो गोल्ड आपको खरीदना है,
आपको पता है कि गोल्ड का भाव $1670 के आसपास है, तो आपको 105% ऑफ $1670 पहले ही जमा करा देना है। आपने मान लीजिए $1700 जमा कराए, आप $1700 जमा कैसे होंगे? आपको आपकी बैंक के पास जाना है, आपकी बैंक को आपको बोलना है कि भाई $1700 के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन होता है, 50,000 के आसपास कैलकुलेशन होगा, उतना पैसा आप 50 लाख रुपया, 1 किलो का 50 लाख रुपया आप जमा करा दीजिए। उसका डॉलर कन्वर्जन करके वो डायरेक्टली उस ट्रेडिंग मेंबर को दे दिया जाएगा जहां से आप डीलिंग करना चाहते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म। आपका पैसा, आपकी सेफ्टी कैसे, इसके लिए सरकार आपको एक यूसीसी कोड नंबर देती है। एक्सचेंज के जरिए ये कोड नंबर जनरेट होता है और 30 मिनट के अंदर अंदर आपका पैसा एक्सचेंज में एक्सचेंज वालों को पता चल जाता है कि $1700 के हिसाब से या 1 किलो के हिसाब से 50 लाख रुपया XYZ पार्टी ने यहाँ पे डिपॉजिट किया है। तो आपको वो ट्रेड करने के लिए परमिशन ओपन कर देते हैं। उसके बाद आप इमीडिएटली ट्रेड कर सकते हैं। एक्सचेंज का टाइमिंग क्या है? सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। तो ये तो हो गया ट्रेडिंग मेंबर। जो सेकेंड टाइप ऑफ मेंबरशिप हुआ वो है लिमिटेड पर्पस ट्रेडिंग मेंबर। लिमिटेड पर्पस ट्रेडिंग मेंबर limited purpose trading member will be who will be limited purpose trading member? Any entity who is only an LLP or a private limited company can be a limited purpose trading member. What is the difference between trading member and a limited purpose trading member? ट्रेडिंग मेंबर में आप ब्रोकर के पास जाके आपका गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन लिमिटेड पर्पस ट्रेडिंग मेंबर में एक्सचेंज आपको खुद को टर्मिनल दे देता है और एक्सचेंज के टर्मिनल से आप खुद बटन प्रेस करके गोल्ड खरीद सकते हैं। पैसा आपको वैसे ही जमा कराना पड़ेगा। लिमिटेड पर्पस ट्रेडिंग मेंबर में पैसा आपको डायरेक्टली एक्सचेंज के पास जमा कराना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बीच में कोई ट्रेडिंग मेंबर होता नहीं। और क्लियरिंग मेंबर कौन होता है? जो आपके गोल्ड की डिलीवरी को एग्जीक्यूट करेगा। तो क्लियरिंग मेंबर तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो CDSL है, NSDL है, उस टाइप के लोग वो क्लियरिंग करते हैं, इसलिए वो छोड़ दीजिए। सो आप या ट्रेडिंग मेंबर बन सकते हैं या लिमिटेड पर्पस ट्रेडिंग मेंबर बन सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। और आपको आज आपने गोल्ड खरीदा, आपको 120 मिनट्स के अंदर अंदर आपका पूरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है और आपको नेक्स्ट डे उसकी डिलीवरी मिल जाती है। ये डिलीवरी फ़िलहाल आपको गिफ्ट सिटी में मिलेगी। उसके 11 दिनों के अंदर अंदर आपको उसकी इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करके आपको ये माल एक गिफ्ट सिटी से बाहर निकाल लेना पड़ेगा। ये पूरा मैकेनिज्म है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का। इस पे कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं? इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है या खाना खाने के बाद सबको नींद आ रही है? सो इट इज़ अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म। सो बेसिकली इफ़ यू आर अ क्वालिफाइड ज्वेलर्स, आप गोल्ड डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हम दुबई के जो 1% ड्यूटी कंसेशन मिल रहा है तो भी हम गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, यदि आपको फाइनल UAE सेपा एग्रीमेंट में आपको फाइनल अलॉटमेंट मिल गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में किसी को आज तक फाइनल अलॉटमेंट मिला ही नहीं है। जो लोगों को भी अलॉटमेंट हुआ है वहाँ पे सेपा एग्रीमेंट में गोल्ड इंपोर्ट करने का, वो प्रोविजनल अलॉटमेंट है। फाइनल अलॉटमेंट आज तक किसी को भी नहीं मिला। ये गोल्ड इंपोर्ट करने के बाद में आप चाहे तो गोल्ड बेच सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप IIBX का मतलब है सिंपल, जब आप क्वालिफाइड ज्वेलर बनते हैं तो बैंक आपको एक नॉमिनेटेड एजेंसी का स्टेटस दे रही है, बैंक नहीं भारत सरकार, कि आप गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए यू आर एलिजिबल, तो आप गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत कोई बड़ा मैकेनिज्म नहीं है। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप क्वालिफाइड ज्वेलर्स की लिस्ट में आते हैं तो आप एक बार आपको ट्रायल करना पड़ेगा। बिकॉज आपको कोई गाड़ी चलाना सीखना है तो एक बार तो स्टीयरिंग पे बैठना पड़ेगा। तो आप 1 किलो गोल्ड नहीं तो आप एक बार 100 ग्राम का 999 का एक पीस इंपोर्ट करके देख लीजिए कि वो पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है। और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, उसमें कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है।
इसका माइनस पॉइंट क्या है? इसका माइनस पॉइंट ये है कि आज जब आप बैंक से गोल्ड खरीदते हैं, आपको गोल्ड मेटल लोन चाहिए तो मिलता है, लेकिन एक्सचेंज में अभी तक गोल्ड मेटल लोन की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में आप दुबई का गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बैंकें ज़्यादा करके बैंकें दुबई का गोल्ड लाती नहीं है। और सेकेंडली, बैंक से मेरे हिसाब से आपको $1.5 से $2 सस्ता माल IIBX में मिलेगा। ऑन 1 kg $1.5 से $2 का मतलब होता है ऑलमोस्ट 5,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आपको पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको IIBX से इंपोर्ट करने का। अभी कोई सवाल है किसी के कुछ इसके ऊपर? नहीं। जो दूसरा मुझे बताया गया है कि सेपा एग्रीमेंट, जो UAE सेपा एग्रीमेंट हुआ है, उस सेपा एग्रीमेंट में अभी तक सिर्फ प्रोविज़नल अलॉटमेंट हुए हैं, फाइनल अलॉटमेंट किसी के भी नहीं हुए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस एग्रीमेंट में माल मंगाएगा, बिकॉज इसका जो मैकेनिज़्म है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको 1% का फिनेंशियल बॉन्ड देना है, क्योंकि आप 1% ड्यूटी बचाने के लिए माल खरीद के ला रहे हैं। उसके बाद आपको जॉब वर्क परमिटेड नहीं है, उसके ऊपर बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो कोई ये सब क्यों करेगा? और जब तक आपको फाइनल अलॉटमेंट ही नहीं होता, आज 6 महीने हो गए, भारत सरकार फाइनल अलॉटमेंट ही नहीं दे सकी, तो क्यों कोई उस एग्रीमेंट के अंदर माल मंगाएगा? दैट मटेरियल इज़ नॉट अवेलेबल एनीवेयर, and even if it is available only with one bank. That UAE SEPA agreement material gold is available with only Yes Bank as of today, but they cannot deliver to anybody because nobody has the license to buy. Final license, final allotment to buy gold under UAE SEPA agreement. The third most important thing, काफ़ी लोगों ने जैसे इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है वैसे ही बहुत जल्द डोमेस्टिक एक्सचेंज आ रहा है। डोमेस्टिक एक्सचेंज में, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में सिर्फ क्वालिफाइड ज्वेलर्स गोल्ड खरीद सकते हैं। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में सिर्फ क्वालिफाइड ज्वेलर्स गोल्ड खरीद सकते हैं। डोमेस्टिक एक्सचेंज में कोई भी व्यक्ति गोल्ड खरीद सकता है। ये बहुत ही जल्द लॉन्च होगा और IBJ NSE के साथ मिलके ये एक्सचेंज बना रहा है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होगा। जैसे आप आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, वैसे आपको गोल्ड मिल जाएगा। आपको गोल्ड के बदले में एक सिक्योरिटी रिसीट मिलेगी जिसका नाम EGR होगा, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। वो आपको मिलेगी और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को आप ट्रेड कर सकते हैं, जितना बरसों तक चाहे आप ट्रेड कर सकते हैं। और जब आपको गोल्ड की डिलीवरी लेनी हो तो आप डिलीवरी ले सकते हैं। तो पूरा जो मैकेनिज़्म है भारत में, जो इंडिया में, द गोल्ड परचेज मैकेनिज़्म इन इंडिया विल चेंज ड्रास्टिकली एंड वी ऑल नीड टू बी गियर्ड अप फॉर दैट। एक्सचेंज से गोल्ड खरीदने का हमेशा फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको शुद्ध सोना मिलेगा, आपको प्योरिटी का सोना मिलता है, और कहीं पर भी आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि इस पे इंपोर्ट ड्यूटी पेड हुई है, नहीं हुई है, या ये कोई बोगस गोल्ड तो नहीं है, कोई फेक गोल्ड तो नहीं है, कोई फेक बिलिंग तो नहीं है। तो ये सारे एडवांटेज आपको वहाँ पर एक्सचेंज से गोल्ड खरीदने के लिए मिलते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया ने अभी पिछले 1 महीने पहले गोल्ड को एक कंट्रोल डिलीवरी लिस्ट में डाला है। कंट्रोल डिलीवरी लिस्ट क्या होती है? जैसे कोई ड्रग्स भारत में इंपोर्ट होते हैं, ड्रग्स आर इम्पोर्टेड इन इंडिया फॉर मेडिसिन पर्पज़ एंड फॉर अदर पर्पजेज़, तो और एक्सपोर्ट भी होते हैं, बिकॉज बहुत सारी अफीम की खेती वगैरह भी भारत में होती है, वो एक्सपोर्ट भी होता है। तो उसे कंट्रोल डिलीवरी लिस्ट में जब डाला जाता है, उसके हर ट्रांजैक्शन पर भारत सरकार की नज़र रहती है, उसके हर ट्रांजैक्शन ट्रेल पे कस्टम डिपार्टमेंट नज़र रखता है, भारत की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियाँ उस पर नज़र रखती है। गोल्ड को उसी कैटेगरी में पिछले 2 महीने से डाला गया है। इसलिए गोल्ड और जितने भी प्रीशियस मेटल है इंक्लूडिंग डायमंड हैव बीन kept in those categories. So when somebody import and export gold, it is completely in the eyes of the government, और उसके ऊपर पूरा ट्रेल एस्टेब्लिश होता है। और यदि कोई ये समझे कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, तो वो अपने आप
को समझ लीजिए कि आपके पास कोई 4 महीने 6 महीने साल भर बाद कोई एजेंसी आएगी और आपको कुछ प्रूव करने के लिए बोलेगी। जितने भी आपके एक्सपोर्ट के पार्सल है वो ओपन होते हैं और जितने ओपन इंपोर्ट के पार्सल है वो ओपन होते हैं। और आपको कौन पेमेंट कर रहा है, आप कहाँ से माल ला रहे हैं, उसका KYC आपने किया है नहीं किया है, आपको एक एक कितने स्टोन लगे हुए हैं, उसकी वैल्यू क्या है, हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना है। यदि आप ये सारी डिटेल नहीं रखते हैं तो यू कैन कम अंडर सीरियस ट्रबल। सो आई रिकमेंड 2 इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप गोल्ड खरीदें तो बिना बार नंबर वाला गोल्ड नहीं खरीदें। अगर आप खरीद रहे हैं तो आप आपका डेथ वारंट साइन कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। अगर आपने कोई भी गोल्ड खरीदा है उस पर यदि बार कोड नंबर नहीं है और उस कोड नंबर को बिल में मेंशन नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ डू नॉट बाय दैट गोल्ड। You are putting yourself in the serious trouble because gold is now under control delivery list and you have to prove that whatever gold you have bought and sold is not a gold smuggled into the country। और ये प्रूव करना आपकी जिम्मेदारी है। उस पर ड्यूटी पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है वो आपकी जिम्मेदारी। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने उससे ख़रीदा था वो जाने, एब्सोल्युटली नहीं, ये बिल्कुल कानून नहीं है। कानून ये है कि द ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑफ गोल्ड इज़ ऑन यू। उसकी जेन्युइननेस का या वो फेक गोल्ड नहीं है या स्मगल्ड गोल्ड नहीं है, द ओनर्स इज ऑफ यू ऑन यू एंड नॉट ऑन द पर्सन हु हैज सोल्ड द गुड्स टू यू। Anybody has any question? I have a quick question about the bar आप जब बता रहे थे, अभी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग केजी बार ना लेके उसमें सिर्फ आधा ही काट के लेते हैं या फिर 200-300 ग्राम काट के लेते हैं। आई हैव नॉट चेक्ड आवर इनवॉइसेस एनीवेज, लेकिन उसमें उसका नंबर डाला जाता है उसमें उसका नंबर जैसे बहुत लोग 1 किलो बार को 10 पार्ट में काटते हैं। करेक्ट। तो आप वो मान लीजिए बार का नंबर है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 उसको 10 में काटा है तो ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट में 3, ब्रैकेट में 4, ब्रैकेट में 5, ऐसे करके ब्रैकेट में 10 तक के लिख के उसका ट्रेल एस्टैब्लिश होगा। ओके, तो वी हैव टू मेक श्योर अगर हम खरीद रहे हैं तो उसका नंबर होना 100% होना चाहिए, नहीं तो आप यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन द ट्रबल। आपके पास कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आके आपको ये प्रूव करने के लिए बोल सकती है। इफ यू आर नॉट एबल टू प्रूव इट विल बी इमीडिएटली सीज्ड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर एवरीबॉडी एक्चुअली। एंड इट हैज बीन ये तो पहले से था, लेकिन इसको जब कंट्रोल डिलीवरी लिस्ट में डाला गया है, इसको अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले ही कंट्रोल डिलीवरी लिस्ट में डाला गया है। और कंट्रोल डिलीवरी लिस्ट में डालने के बाद उसमें डेफिनेटली इस टाइप की जो सिचुएशन है वो आई है। अभी तो वो वाली बात हो गई जो कैडबरी हम लेते हैं, हर एक पीस पे कैडबरी का लोगो आता है, छोटे छोटे पीस लो तो भी वी हैव टू एंश्योर। नहीं सर, ये सेक्शन 124, 123 एंड 125 ऑफ द कस्टम एक्ट में पहले से लिखा हुआ है। देर आर 3 आइटम्स जो कस्टम में लिखी हुई है कि द ओनर्स ऑफ प्रूफ इज ऑन यू। मान लीजिए अभी कोई आपकी जेब चेक करता है और आपकी जेब में से 100 ग्राम की कैडबरी निकलती है या 1 किलो का बार निकलता है, तो आपको ये प्रूव करना है कि इस पे ड्यूटी पेमेंट हुआ है कि नहीं। आप प्रूव कैसे करेंगे मुझे बताइए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नहीं तो इमीडिएटली यू कैन बी अरेस्टेड एंड योर गोल्ड कैन बी सीज्ड, दोनों चीज़ें होगी। You will be called carrying the illegal importing activity in the country. Yeah, because I am a part of the customs appraisal as well, so I see every detail is mentioned. जो packing list होता है now. So आपने देखा होगा लास्ट 2 महीने में काफी स्ट्रिक्ट हुए। Very strict actually. It is because that has been put in the control delivery list. So it is gold and अफीम, गांजा, चरस is in the same list. मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। Any other questions we have pertaining to this part? आप कुछ पूछ रहे थे। नमस्ते। अभी सर हमारे पास पुराना सोना भी परचेज हो जाता है। हाँ, पुराना सोना जो भी परचेज होता है वो ऑर्नामेंट के फॉर्म में रहता है। ऑर्नामेंट का फॉर्म हम रिफाइनिंग करके जो एक्सचेंज बुलियन में देता है वो प्योर सोना दे देता है। तो फिर ऐसा सोना लेने से हमें क्या नहीं, देखिए आप जो भी सोना खरीद रहे हैं, आप जिससे भी खरीद रहे हैं, एक तो आप 10,000 रुपए के ऊपर कैश पेमेंट नहीं कर सकते। नहीं, पेमेंट तो हम ऑफिशियली करें, अकाउंट नहीं करेंगे। सुनिए मेरी बात, साथ में आप एक डिक्लेरेशन लीजिए उससे कि भाई ये ओल्ड ऑर्नामेंट है जो आदमी बेचने को आया है। ओके। एंड इफ पॉसिबल प्लीज कीप अ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। आप वीडियो रिकॉर्डिंग रखिए,
वो आदमी से आपने सोना खरीदा है, ये प्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी है, और वो चोरी का सोना नहीं है, वो भी प्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी ठीक है, या वो स्मगलिंग का सोना नहीं है, वो भी प्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है। तो आप लोगों को ये चाहिए कि जब कोई सोना बेचने आता है, जब कोई भी बहुत लेडीज़ आती हैं या बहुत कोई भी जेंट्स आते हैं पुराना सोना बेचने के लिए, तो प्लीज़ और टेक कंप्लीट KYC फ्रॉम देम and take a affidavit or a declaration from them stating that whatever gold they are selling to you is it their ancestral property or their own property, and it is not a smuggled gold, it's an old ornament, and अगर उसमें कुछ भी डिफेक्ट पाया गया तो दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। यू हैव टू योर, बट स्टिल ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो यू आर इन ट्रबल। तो फिर मेरा क्वेश्चन अलग था, मैं क्या पूछ रहा था, सपोज मेरा ये ज्वेलरी बेचा हुआ और मैं री बाय करता हूँ, तब री बाय करता हूँ तो फिर मैं छोटा छोटा क्वांटिटी का आइटम रिफाइनिंग खुद नहीं करता हूँ, मैं रिफाइनर किया हुआ आइटम एक्सचेंज करके प्योर सोना ले लेता हूँ, क्योंकि वो रिफाइनिंग का झंझट होता है, उसमें ज़्यादा आगे पीछे होने का चांसेस रहता है। वो टाइम में हमारे पास परचेजिंग रहता है, होचर रहता है, बिलिंग रहता है, इन अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं हो सकती। अगेंस्ट सेल ऑफ गोल्ड मेरा भी रहता है, इनके इट इज एन एक्सचेंज ऑफ जो गोल्ड। बार आपने परचेज किया है, योर परचेज इज एन इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन ऑफ व्हाट यू आर एक्सचेंजिंग। सो जो बार आपने परचेज किया है उस बार का परचेज नंबर आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो यू कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू सर। Anybody has any other question? Can we wind up? Any question related to this one or related to IABX? I think we can take one last question हाँ, before we wind up. इनको कुछ पूछो। एक्सचेंज का सोना मिलने का ठिकाना कहाँ है इंडिया में? हाँ जी, IIBX का सोना कहाँ पे डिलीवरी मिलता है? गिफ्ट सिटी में ही डिलीवरी मिलेगा। वहाँ से आपको वहाँ पे कस्टम का ऑफिस है, वहाँ से माल क्लियर करा के आपको आपका CHA आपको डिलीवरी करेगा। अभी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके वॉल्ट जितने भी SEZ है उधर भी वॉल्ट बना दिए जाए। तो हम लोग फिर आपको मान लीजिए कि चेन्नई से गोल्ड चाहिए तो वो स्क्रीन में दिखाई देगा कि चेन्नई में कितना गोल्ड अवेलेबल है, तो आप वो वाला गोल्ड ही बाय कीजिए। ये अभी हम लोग वो मैकेनिज्म चालू कर रहे हैं। वैभव जी को कुछ पूछना। सर, कैन यू ब्रीफ समथिंग अबाउट ईबे बिल? आजकल जो हाँ नोटिफिकेशन है, अरे वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें- ओह सॉरी, आई फॉरगॉट अबाउट इट। अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा कि ईवे बिल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं, बेसिकली वो GST का जो टर्मिनल बनाते हैं उन लोगों ने एक स्टेटमेंट इशू किया है कि ईवे बिल इज नाउ पार्ट A ऑफ द ईवे बिल इज नाउ एनेबल्ड ऑन द ईवे पोर्टल। पहले तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईवे बिल एंड ई-इनवॉइसिंग। ई-इनवॉइसिंग अप्लाइज वेयर योर टर्नओवर एक्सीड्स 20 करोड़ रुपीज फ्रॉम 1st October। when your turnover exceeds 10 crore rupees, e-invoicing will apply. But e-way bill as of now is not applicable in our country. Please understand, this is a myth कि e-way bill applicable हो गया है, सिर्फ उसको पोर्टल पे एनेबल किया है। एंड इट इज़ अप टू एवरी स्टेट गवर्नमेंट, जब तक कोई स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं निकालती है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ क्लियरली सेड हम लोग ई वे बिल वी विल नॉट नेवर मेक ई वे बिल मैंडेटरी, एंड दे हैव लेफ्ट इट टू द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक ई वे बिल मैंडेटरी. So if suppose you are in the Karnataka state, if Karnataka state makes e-way bill mandatory, then every inward and outward from Karnataka में जो भी करेगा उसको e-way bill compulsory हो जाएगा. But provided Karnataka issues a notification to that effect. So if I want to sell something from Maharashtra to Karnataka, I must sell it through e-way bill. And if you want to transfer anything within the Karnataka or from Karnataka to Maharashtra or Gujarat, then also e-way bill will be compulsory. But till today, no state in India has issued a notification for e-way bill. So there is no myth, किसी घबराने की जरूरत नहीं. और देखिए ये सब आने वाला है, घबरा के कुछ होगा भी नहीं, ये आने ही वाला है, आप समझ लीजिए कि आ ही गया. Anything else? Any other questions? Thank you so much. Thank you for having listened to me so patiently. Thank you.
थैंक्स अ लॉट सुरेंद्र जी, आपने एकदम ब्रीफली और बहुत संक्षिप्त में समझाया. प्लीज जस्ट वन मोर मिनट. And in a very brief way, he told about the IIBX part and a couple of eye openers actually. One of the most important information we got now is like कुछ भी हम लोग बुलियन बाई कर रहे हैं, we have to, irrespective you have the number or not, you have to prove it. So that is one of the most important part of this whole session. I think that is the biggest takeaway of this whole session. And we wholeheartedly thank Surinder Bhai for taking off time and coming and delivering this insightful lecture to all of us. And we foresee such seminars in future as well. I request Ketan Bhai and Suresh Bhai to please come on the stage and hand over a token of love to Surinder Bhai. Thank you. Thanks a lot.